2G स्कैम में जीरो लॉस की थ्योरी देने वाले चांदनी चौक से हारे हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल जब 2G स्कैम को लेकर बीजेपी मोर्चा खोले हुए थी, तब यूपीए सरकार में संचार मंत्रालय का प्रभार संभाले कपिल सिब्बल ने 2G स्कैम में हुए नुकसान को जीरो नुकसान बताया था। यही नहीं, यूपीए सरकार ने 2G स्कैम को अटल जी की एनडीए सरकार से जोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत में कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियों का सफेद झूठ सामने आ गया। वहीं संजीव भट्ट की हकीकत सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया। In fact, the recent few judgments from the Supreme Court of India, the highest court of India, exposes the Congress as never before. And today we can very firmly say, the Bharatiya Janata Party can very firmly say that the Congress party has been exposed as never before. Three recent judgments add to this effect. For a long span of more than 10 years, the Congress party has spoken about the coffin scam, and we had seen as to how that was thrown out of the window by the Supreme Court. About 4 days ago, a major judgment relating to the 2G was placed by the Supreme Court. The Congress has tried its best to see to it that a non-existing scam was unearthed during the tenure of the previous NDA government. We had seen as to how one of the CBI courts pronounced that the charge sheet which was filed as far as the unearthed so-called scam is concerned was absolutely wrong, was fabricated charge sheet. And as has been pointed out rightly by the finance minister of the country, Mr. Arun Jaitley, Mr. Kapil Sibbal should answer as to how he saw to it that a fabricated charge sheet was placed in front of the CBI court. How they tried their best, how the Congress tried its best to shift the onus of a non-existing scam towards the NDA government. It was the same Kapil Sibbal who by this gesture had spoken about zero loss theory. Mr. Sibbal, you have been exposed today. You had utilized the CBI, you had utilized the judicial process, you had utilized all your means to send the wrong signal to the people, to mislead the court and to mislead the people of this country. You stand exposed today. Mr. Sibbal should be asking for forgiveness from the people of the country today. The third case which came out from the Supreme Court, the verdict of which came out from the Supreme Court about a couple of days ago, is highly indicting to the Congress party. That is the case relating to one Mr. Sanjeev Bhatt, an IPS officer of Gujarat, who in fact created a cabal along with the opposing political parties, NGOs and few others to see to it that the Bharatiya Janata Party's name was maligned. And in fact, the Supreme Court of India, mind you friends, none other than the Supreme Court of India had to use these words for Mr. Sanjeev Bhatt. No relief can be granted if a person, read Sanjeev Bhatt, approaches the court with unclean hands. It is not just that Sanjeev Bhatt has unclean hands. The rival political party of Bharatiya Janata Party in Gujarat, the symbol of which is a hand, is also the unclean hand. केवल संजीव भट्ट का ही हाथ गंदे थे, गुनहगार वाले हाथ थे, ऐसा नहीं है। उनके हाथ तो गंदे थे ही। जिस हाथ का सहारा उनको था, जिसको राइवल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कहा गया है और जिसके बिहेस्ट में ये सारा खेल रचा गया, वह हाथ भी, वह पंजा भी गंदा था। यह आज सिद्ध हो रहा है। कोर्ट ने बहुत सीवियर तरीके से कांग्रेस को इंडाइट किया है। द कांग्रेस हैज बीन एक्सपोज्ड एज नेवर बिफोर। आप देखिए, नानावती कमीशन के सामने डिपोज करने से पहले जो ईमेल सामने आए हैं संजीव भट्ट के, उस ईमेल से मालूम पड़ता है, वी कम टू नो फ्रॉम द ईमेल्स of Mr. Sanjeev Bhatt that Mr. Sanjeev Bhatt was to be tutored by a lawyer
of an NGO at the behest of Congress. And at a later stage, despite the fact that ghost questions were prepared, despite the fact that a mock drill was done, but when the real time of cross-examining Mr. Sanjeev Bhatt in front of the commission came, Mr. Sanjeev Bhatt was not happy. And he says that I have been underexploited, to the effect that he was not fully exploited by a council of the rival political party while his statement was being recorded by the Justice Nanavati Commission. Just imagine, to such extent a bureaucrat, a serving bureaucrat then, was utilized by a rival political party through the cabals of NGOs to project the then government in Gujarat and the then Chief Minister of Gujarat in a wrong light. Never before has the Congress been exposed to such an extent. And today, the country knows as to how during the coffin, the so-called era of when we discussed about Kargil war, how you had destroyed the parliament then, how you had not allowed the parliament to function then, and how in the 2G scam you have been exposed. And when you were exposed, you tried your best to shift the onus towards the previous government, to honest officers. You tried to frame a deceased respectable minister, Mr. Pramod Mahajan. But today the court debunks you. None other than the highest court says that you are wrong. In fact, the CBI court, the trial court which was listening to this, says that the CBI probably was misused in this. So what the Bharatiya Janata Party has been saying right from the very beginning, that the Congress party has been using most of the institutions of the government, had been using most of the institutions of the government to further his cause, has been said thereafter, has been proved hereafter. The Congress, and none other than Mrs. Sonia Gandhi, the President of Congress, should come out and should ask for forgiveness, not only from Bharatiya Janata Party for having misled the people of this country in ways more than one, but she should also ask for forgiveness from the people of this country because she has misled and misinformed the people of this country in ways more than one. Thank you so much. देखिए, हाल के ही कुछ हफ्तों में हिंदुस्तान के विभिन्न कोर्ट से, खास करके सुप्रीम कोर्ट से, कांग्रेस का जो एक्सपोजर हुआ है, कांग्रेस के जो गलतियों को देश के सामने रखने का काम हुआ है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले कांग्रेस कभी इतनी बुरी तरह से एक्सपोज नहीं हुई थी। उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किए, मगर पहली बार कानून के सिकंजे में कांग्रेस फंसी है और इस बुरी तरह फंसी है कि उनकी धज्जियां उड़ी हैं। कांग्रेस का हाथ कितना भी अनक्लीन हो सकता है और वो सोच सकता है कि वो बच जाए, मगर कानून के हाथ कांग्रेस के हाथ को पकड़ सकती है, ये सिद्ध हो गया है। कानून के हाथ से कांग्रेस का हाथ बच नहीं सकता है। आप देखिए, 2G केस में कपिल सिब्बल इस प्रकार से हाथ करके कहते थे, ये तो जीरो लॉस हुआ है, ये तो जीरो लॉस हुआ है। और जब उनकी चोरी पकड़ी गई, जब मालूम पड़ा कि ये जीरो लॉस नहीं था, ये तो पूरा लूट का मामला था, तब इन्होंने भरसक कोशिश की कि इस पूरे घोटाले का कुछ तीर जो है वो एनडीए की सरकार की तरफ भी ले जाया जाए। और किस प्रकार से एक फैब्रिकेटेड चार्जशीट भी फाइल किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे, जब सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने इसमें सुनवाई की, उन्होंने कहा कि ये चार्जशीट फैब्रिकेटेड था, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ऑनेस्ट ऑफिसर्स को, एक मंत्री जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन लोगों को फंसाने की ये साजिश थी। और इसके पीछे जो व्यक्ति थे उनका नाम कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल जी ने ही इस चार्जशीट को इस प्रकार से फैब्रिकेट किया, पूरी कोशिश की कि कुछ न कुछ उनका जो पाप है उसका हिस्सा दूसरों की तरफ जाए, मगर न्याय ने, न्यायपालिका ने और न्याय की प्रक्रिया ने इसको होने से रोक दिया है। आज कांग्रेस एक्सपोज हुई है 2G के मामले में। संजीव भट्ट नामक एक आईपीएस ऑफिसर का प्रयोग करते हुए बहुत सारे एनजीओज,
तीस्ता सितलवाड़ इत्यादि के एनजीओ को प्रयोग करते हुए जो राइवल पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में हमारे थे, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम लोगों ने जो भरसक प्रयास किया कि मोदी जी को बदनाम किया जाए, क्योंकि वो बिलबिलाए हुए थे, तिलमिलाए हुए थे, बौखलाए हुए थे कि आखिर गुजरात इतना आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से इनको रोका जाए। तो एक समूह बना के इन सब लोगों ने बदनाम करने की जो कोशिश की, जो साजिश रचा, 13 वर्षों तक हम पे बाण छोड़े, हम उनके झूठ के खिलाफ, मिथ्या के खिलाफ लड़ते रहे। परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका तार तार कर दिया है। परसों सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज किया है कि ये ऐतिहासिक एक्सपोजर है। संजीव भट्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके हाथ दागदार हैं, अनक्लीन हैं, इसलिए आप इस कोर्ट में आकर ये न सोचे कि आपको रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिस प्रकार एक नेक्सस बनाया गया राइवल पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ और संजीव भट्ट का, यह अफसोसजनक है। ये दागदार हाथ केवल संजीव भट्ट के नहीं है, ये दागदार हाथ कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के इस दागदार हाथ ने देश के साथ जो गद्दारी की है, देश को जो धोखा दिया है, यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से साफ होकर बाहर निकलता है। एक ऐसा क्षण आता है, नानावती कमीशन में अपने डिपोजिशन से पहले संजीव भट्ट एक ईमेल भेजते हैं कि मुझे जेरा करने के लिए एक घोस्ट क्वेश्चन बनाया जाए, मॉक ड्रिल किया जाए कांग्रेस के लॉयर द्वारा। वो किया जाता है, मगर फिर भी उस दिन जब उनकी जेरा की जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है नानावती कमीशन के सामने, उसके बाद संजीव भट्ट लिखते हैं मुझे तो पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया गया, ये जो वकील कांग्रेस ने भेजा वो काम का नहीं था और ज़्यादा मुझे इस्तेमाल किया जा सकता था स्टेट के खिलाफ। आप बताइए, इस प्रकार का षड्यंत्र, और वो भी क्या, पैकेट और आइटम्स लेके। कांग्रेस पार्टी गुजरात में पैकेट और आइटम दे रही थी एक आईपीएस ऑफिसर को, नरेंद्र मोदी जी के नाम को, गुजरात के नाम को बदनाम करने के लिए। इस कदर गिर सकती है कांग्रेस, इस कदर गिर सकती है कांग्रेस, यह अपने आप में आज जनता के समक्ष सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। मैं जनता से लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी ट्रायल कोर्ट्स के ये जो वर्डिक्ट्स आए हैं, इससे ये सिद्ध होता है कांग्रेस का हाथ अनक्लीन है, कांग्रेस का हाथ साफ नहीं है, कांग्रेस का हाथ इस देश को लूटने वाला हाथ है। इससे सजग रहने की, इस षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नहीं, इस पे सरकार ने कहा है, इस पे लॉ मिनिस्टर ने कहा है, मैं कहना उचित नहीं समझा। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है, ये इलेक्शन कमीशन ही निर्णय लेगा। नहीं, ये रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग टीम इलेक्शन कमीशन से जाती है वही रिपोर्ट तय करती है। इलेक्शन कमीशन के विषय पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मानती है कि हम सभी को लेकर आगे बढ़े, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले ही जो उन्होंने कैच लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए दिया था, वह था और वह है सबका साथ सबका विकास। सभी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर देश को आगे बढ़ाना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आपका सवाल बिहार से था, हाँ, जहानाबाद से। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में तीव्र गति से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, जीत की ओर बढ़ रही है। इसके कारण से जो विपक्षी पार्टी में बौखलाहट है वो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। पात्रा जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बिहार में मोदी जी हार रहे हैं और नीतीश कुमार जीत रहे हैं, उनकी ये जानकारी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के विषय में तो जान नहीं पाते हैं। जितेंद्र तोमर उन्हें ठग के चले जाता है, वो बाद में बोलते हैं मुझे तो अंधेरे में रखा गया, मुझे पता नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जी अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर का लाखों लाखों रुपए लेके जेब में भर लेते हैं, वो जान नहीं पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पूर्व कैबिनेट मंत्री घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वो जान नहीं पाते हैं। अब उनके नाक के नीचे वो क्या हो रहा है, उनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो जान नहीं पाते हैं।
तो वो दूसरे राज्यों के बारे में क्या जानते होंगे। मैं उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली के विषय में चिंता करें। दिल्ली में देखिए 10,000 से अधिक डेंगू का केस हो गया है, दिल्ली में स्वाइन फ्लू आ रहा है, उसके विषय में चिंता करें। वो पूरे ब्रह्मांड की इलेक्शन के विषय में चिंता बाद में करें। माता जी, खट्टर जी के बयान पे क्या करेंगे? जिस तरह से उन्होंने इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने ही अपना विषय रखा है, खंडन कर दिया उन्होंने, बस उन्होंने रखा है। मुख्यमंत्री ने जब खुद कहा है तो